हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 9 जून वृंदावन सेवा निवृत्त होने के बाद का स्थान है। कृष्ण भावना में वरिष्ठ भक्त अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वृंदावन में रहना चाहिए, न कि स्त्रियों और बच्चों को। यह तथ्य है कि पवित्र धाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है। यदि आवश्यकता हो तो व्यवस्थापन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए, न कि गृहस्थों द्वारा। गोपाल कृष्ण को पत्र 9 जून 1976। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभ जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ जस्सिह कर्मभि। So we are discussing dharma, artha, kam, moksha. So we have already discussed the religiosity does not mean to gain material gain. Generally, people take to religiosity for material gain. We have already discussed, just people go to the church, God give us our daily bread. Or even in temple, they go to ask something, material gain. But actually religiosity is not meant for that purpose. Religiosity meant for dharmasya apavargasya. To enter into life of religiosity means to get out of the threefold miserable condition of life, apavarga. So, then dharma, artha, money also we want. Arthasya dharmaikantasya na kama labhaya smritaha. We want money, that's all right. But not for satisfaction of our lusty desires. Money has got its use. Just like in our Krishna consciousness movement, we get money also. But we are spending for spreading Krishna consciousness. Our need is very great. People will be surprised what we are expending per month. We have got more than 100 branches all over the world. And each branch, there is expenditure. In Los Angeles, we spend $20,000 per month. In New York, we spend $10,000 per month, or more than that. Similarly, on the average, we spend not less than $10,000 per each branch. But we have got calculation, we are spending $70,000 per month. So Indian exchange means 7 lakhs of rupees. So you need money. And you are getting money also. In Europe, in America, the process of getting money is not like here, that I go to any gentleman, give us some donation. That is not possible. You cannot enter even one's house
without introduction, then you are trespassing. If you enter anyone's house without permission, he can kill you. This is the law. And every door there is signboard, beware of the dogs. So it is not possible to go and beg, sir, give us something. But fortunately, we have published books, about 20 books, 400 pages each. And we are going on publishing. By Krishna's grace, we are selling books daily 25,000 rupees. Therefore, you are able to spend 7 lakhs of rupees per month. So Krishna gives. My Guru Maharaj always used to speak that why should you go and flatter? You should speak plain truth without any flattering. Money will come. That was his conviction. And so it is experience. You have got very, very heavy expenditure. But all this money collected, they are not meant for India Priti, not for sense gratification. That is the significance. If you want money for sense gratification, then according to our destiny we shall get. Not more than that. Nobody can get more. Therefore Bhagavad says, Tasyaiva heta prajateta kovita nalabhate jad brahmatam uparja tallabhate dukkha vadannata sukham kalena sarvatra gubhiranam. So far our sense gratification is concerned, we cannot get money more than what we are destined to get. Otherwise, why there are so many people born with silver spoon in their mouth and somebody is born poor and is not getting even 2 times food, working very hard day and night. So there is a destiny. Destiny we cannot improve, that is already settled up. But you can improve your Krishna consciousness. That chance is there. Therefore Bhagavad said, Tasyaiva heta prajateta kovita. Those who are learned, those who are intelligent, they should devote the life for developing Krishna consciousness. The Krishna consciousness is there in everyone's heart, dormantly. Nitya siddha Krishna bhakti sadha kohu na sarvanadi shuddha chitte karayu. Our love for Krishna is there already. But it is covered. It is covered by the influence of the modes of material nature. It is covered. So this Krishna consciousness movement is nothing but discovering Krishna consciousness. It is already there. But we are giving chance to the people for hearing about Krishna. That's all. All these European, American boys and girls who have joined, they have simply been given the chance of hearing.
Cheta Darpana Marjana. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाध्यपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियां को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहां पे अर्जुन ने शरणागति ली। पिछले श्लोक में हमने कल देखा अर्जुन ने शरणागति ली। अब अर्जुन से मान लीजिए पूछ रहे हैं कृष्ण कि तुम तो राजा बन जाओगे या इंद्र के पास चले जाओगे। तो बता रहा है अर्जुन कि नहीं, आप अगर कहोगे कृष्ण, मान लीजिए प्रोएक्टिव बोल रहा है, हो सकता है आप कहो कि तुम युद्ध करो, जीत जाओगे तो तुम्हें, आगे तो कृष्ण कहेंगे ही, जीत जाओगे तो तुम्हें पूरा निष्कंटक राज्य मिलेगा और हार जाओगे, मृत्यु को प्राप्त किए तो स्वर्ग में आनंद भोगोगे, तो तुम्हारा तो मजा ही है। तो बोलते नहीं, लेकिन जो मेरी समस्या है ना कृष्ण, वो तो पूरी नहीं होगी, वो दूर नहीं होगी, उसका हल नहीं मिलेगा। तो समस्या है क्या? अब प्रश्न ही उठता है। आज देखिए, ये हम इस आधुनिक समाज में रह रहे हैं जहां पे जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो पूरा आधुनिक है। किन समस्याओं को दूर करने में लगे हैं? गरीबी हटाओ, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ और अपना आधिपत्य दूसरे ग्रहों पे जमाओ। हालांकि अपने शरीर को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने शरीर को वश में नहीं कर पा रहे हैं। मन को वश में करना तो एक स्वप्न है मनुष्य के लिए, और जाके हम दूसरे ग्रहों पे आधिपत्य दिखा रहे हैं अपना। तो समस्या क्या है? असली समस्या भगवान आगे गीता में बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, ये 4 असली समस्याएं हैं और ये सबको देखना पड़ता है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे पेड़ पौधे हो, ये सबको देखना, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, ये सबको देखना पड़ता है। ऊपर के लोकों में भी सेम प्रॉब्लम है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, मृत्यु का भय सबको है इस भौतिक संसार में, कोई भी अमर नहीं है यहां पे। तो ये तो असली समस्या है, इसको सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए अर्जुन बोलता है कि अगर निष्कंटक राज्य भी मिला मुझे प्रभु, हम जीत गए, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाएंगे, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य मिलेगा, तो भी जो मैं मन में अभी दुख को प्राप्त कर रहा हूं, जो मेरा मन दुखी कर रहा है मुझे, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का निशानी है। अर्जुन देख सक रहा है कि ये छोटे मोटे क्या घरेलू बिजनेस का और जॉब का, प्रोफेशन का, ये सब प्रॉब्लम कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। क्योंकि आज आप रोडपति हो, मतलब रोड पे रहने वाला हो, या करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, दुख सबको है। प्रश्न ये उठता है कि दुख से बाहर कैसे जाऊं मैं? क्योंकि अगर आप अरबपति हैं तो क्या बीमारी नहीं हो रही? क्या मृत्यु नहीं होगी आपकी?
इतने अरबपतियों तो की मृत्यु हो गई, वो चले गए, क्या आपकी मृत्यु नहीं होगी? क्या आप बहुत बुद्धिमान हैं इसीलिए आपको बुढ़ापा नहीं होगा? ये तो प्रॉब्लम। आप बुद्धिमान हो, आप शक्तिशाली हो, आप धनाढ्य हो, धनानंद हो, लेकिन जो दुख है इस भौतिक संसार का वो तो फिर भी आ रहा है। तो हर व्यक्ति को अपने से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि भौतिक संसार के दुखों से मैं बाहर कैसे निकलूं। प्रश्न तो ये उठता है, लोग लगे पड़े हैं पैसा कमाने में, बचपन से एजुकेशन मार्क्स के पीछे लगा पड़ा है। हर किसी को माता पिता बोलते हैं पढ़ो पढ़ो और मार्क्स लाओ और मार्क्स लाओ और मार्क्स लाओ। फिर आगे चल के माता पिता छोड़ देते हैं, फिर दूसरे दोस्त बोलते हैं पीयर प्रेशर और मार्क्स लाओ और मार्क्स लाओ, टीचर्स बोलते हैं और मार्क्स लाओ, फिर जॉब लग जाती है और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ, परेशान हो जाता है, फिर विवाह करता है, सोचता है अभी आनंद मिलेगा, नहीं मिलता है और पैसा कमाओ, फिर बच्चे आ जाते हैं और पैसा कमाओ। ये पूरा जीवन सबका ऐसे ही लगा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सब बस भाग रहे हैं। किसी ने कभी सोचा है क्या कि इस संसार में मुझे दुख क्यों मिल रहा है? वो असली बुद्धिमानी है और अर्जुन ये समझ गया है। और इसके बाद दूसरा स्टेप एक बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे पहले तो डायग्नोसिस करना कि मुझे बीमारी है। क्या बीमारी है? दुख आ रहा है। अब ये पता लगाना चाहिए कि इस दुख से दूर कौन करेगा मुझे? भगवान करेंगे, जो सृष्टि करता है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है वही बना सकते हैं नियम, वही हमें यहां से निकाल सकते हैं। अब भगवान को कहां ढूंढूं? तो भगवान तो उपलब्ध है नाम के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, भगवान उपलब्ध है भगवद गीता में अपने उपदेशों के रूप में। और भगवान के पास शरणागति नहीं हो पा रही है तो भगवान के, क्योंकि भगवान को हम, जैसे अर्जुन के पास भगवान साक्षात थे, तो हमारे पास भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि जो भक्त हैं, जो आचार्य हैं, हम उनकी शरण में जाएंगे तो भी हमको वे वही फल देंगे जो भगवान देते हैं। यानी भगवान के आयोजन से भगवान इनको इतनी पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि हमको दुखों से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं। तो ये है गुरु। तो इसीलिए अर्जुन समझ गया कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो भी दुखी रहूंगा, युद्ध हार भी गया तो भी दुखी रहूंगा, युद्ध लड़ूंगा तो भी दुखी हूं, युद्ध नहीं लड़ूंगा तो भी मैं दुखी रहूंगा। तो दुख तो अभी भी है प्रभु मेरा। तो फिर अर्जुन बोलता है नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। और इसी के लिए, क्योंकि मैं नहीं सोच पा रहा हूं, मैं एक लिमिट तक सोच पा रहा हूं, मेरी सीमा है, मैं सीमित हूं, आप असीम हैं कृष्ण, आप असीम हैं। कृष्ण का एक नाम है असीम कृष्ण। आपकी कोई सीमा नहीं है, आपकी बुद्धि का, आपका बल का, आपका ऐश्वर्य का, आपका सीमा नहीं है। तो आपको पता है कि मैं दुख में क्यों हूं और आपको यह भी पता है कि मुझे दुख से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। इसीलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। पिछले श्लोक में शरण में आ गया, लेकिन अभी और बता रहा है कि क्यों। आप ये मत सोचिए कि मैं इधर उधर ऐसे करके, है ना, लोग सोचते हैं हाथ पैर मार के चलो घर बड़ा कर लिया, गाड़ी नया ले लिया, घर को पेंट कर लिया, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, बच्चों का विवाह कर लिया, तो अब हम सुखी हो गए। हाँ, सुख तो नहीं मिल रहा है। तो अर्जुन पहले से ही बोल रहा है नहीं नहीं, ये सब करने से भी मुझे पता है मेरा दुख नहीं जाने वाला, सुख आने नहीं वाला। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं प्रभु, शरण लेने के लिए कि आप कुछ उपाय निकालिए और बताइए मुझे कि मैं इन दुखों से कैसे बाहर निकल सकता हूं और आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। और यही एक बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि मान लो कुछ लोग लगे हैं जो संसार में भोग करना चाहते हैं, और बहुत कम है आज जो ऐसे जो सोचते हैं चलो पुण्य करते हैं
और उच्च लोकों में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहां पे आनंद भोगेंगे। मतलब वही है, चाहे यहाँ आनंद, हाँ वहां का थोड़ा रिफाइंड आनंद है, थोड़ा अच्छा आनंद है, स्टेटस वाला आनंद है, लेकिन दुख तो वहां पे भी है। क्यों? शिन्ने पुण्य मर्त्य लोक विशंति, भगवान बताएंगे आप यहाँ पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे, शिन्ने पुण्य, जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा वापस आओगे। जैसे आप वीजा लेते हैं, मान लीजिए भारत से आपको अमेरिका जाना, 1 महीने का वीजा लिया, वीजा फीस भरा, होटल बुक किया, सब कुछ किया, 1 महीने बाद वीजा खत्म, आपको उठा के वापस भेज दिया जाएगा, आप एक्स्ट्रा नहीं रोक सकते। तो ऐसे ही आप जितना पुण्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, जिस दिन पुण्य खत्म हिसाब कर दिया जाएगा, चलो वापस भेजो उसको, वापस इस मृत्यु संसार में आएंगे, तो वापस तो क्या फायदा हुआ। तो ये तो सब टेम्पररी इलाज है। परमानेंट इलाज क्या है, ये भगवद गीता में दिया है। ये अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है कि मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए प्रभु, मुझे टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो कृष्ण की शरण या कृष्ण के भक्त, जो प्रामाणिक भक्त है, उनकी शरण में जाके हमको ये परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। हरे कृष्ण।